Did we discuss the advantages and disadvantages of on the job and off the job methods? No? No, I don't think so. Okay. On the job methods and off the job methods. On the job means you're getting trained while you are working. While you're working in the organization, you're getting training for your work. Okay, this will be known as on the job method. Fine. What about off the job method? Any training which is not at that workplace, which is given to you off the job, means not at workplace, at some other place, will be known as off the job training. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब तो आप समझ गए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ओजेटी कहते हैं इसको. ओके, आपको कहीं लिखा हुआ मिले, देन यू अंडरस्टैंड दैट ओजेटी इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब इज नॉट एट वर्क प्लेस. इसका एग्जांपल दे सकते हैं? कोई भी एग्जांपल इफ इट कम्स टू योर माइंड. हां, तो उसका ऑफ द जॉब नहीं दे सकते. ठीक है, ऑन द जॉब भी ट्रेनिंग होती है उसकी ऑफ के बाद. लेकिन आई एम आस्किंग यू फॉर द सेंटर्स. डू यू नो द नेम ऑफ एनी ऑफ द सेंटर्स वेयर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज डन? कोई आइडिया? यूपीएससी से कैंडिडेट्स जैसे जो आईएएस सिलेक्ट हुए, ओके, देयर आर few IAS like 150 के लखनऊ में मान लो IAS select हुए. You know, UPSC will divide it according to rank, IAS, IPS, IFS and all. Initial training is given in Mussoorie and the name of the training place is Labasana, Lal Bahadur Shastri Training Center in Mussoorie, Uttarakhand. That is known as off the job training center. The others, Indian Institute of Coal Mines. Okay, it's a government institute, Indian Institute of Coal Mines, which is in Ranchi, and Ranchi, Jharkhand. Coal India की जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो वहीं होती है. Okay, at whichever level, management trainee level, executive level, AGM level, or whatever. So they have their own training center, and this is known as off the job training. Understood? On the job training यानी कि वर्क प्लेस पे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप सोच के लिखिए अपने कॉपी में. आई गिव यू 2 to 3 मिनट्स. इसको लिखिए और इसका सोचिए क्या होना चाहिए.
ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आल्सो राइट ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का जो पॉसिबल एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप सोच सकते हैं वो आप सोच के लिखिए. What is your name? Tanvi. Okay, you're not Prerna. Fine. No googling. चलो, we'll discuss. Okay? Written? बताओ. On the job मतलब at workplace. क्या लिखा एडवांटेज? क्या लगता है एडवांटेज क्या होगा? प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है. हाँ. टाइम एफिशिएंट एंड देखो, जब कॉस्ट एफिशिएंट बोलोगे तो इसमें दो फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा. दो चीज को. पहली बात कि कॉस्ट एफिशिएंट तब जब ओनली अ स्मॉल बंच ऑफ एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व. ठीक है. क्योंकि हम इस मशीन पे काम कर रहे हैं और हम तुम लोगों को काम सिखाएंगे. बड़ी बड़ी मशीन होती है. ये जनरली ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है दैट इज सुटेबल मोर फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ओके. सो व्हेन वी से दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सपोज करो कि एक मशीन है, इसका ऑपरेशन हम तुमको सिखा रहे हैं, तो 5-6 जन रहोगे तो ही सीख पाओगे. अब 25 आदमी को एक ही मशीन सिखाना पॉसिबल है? नहीं है. इसीलिए ये कॉस्ट जो है इसको थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड है इसमें. लेकिन जब द अदर डे यू रोट ऑफ द जॉब में क्लासरूम लेक्चर लिखा होगा एक मेथड में लेक्चर मेथड लिखे हो. देखो यहाँ 10 कितने हैं? 3 4 5 6 7 7 people are sitting here. If instead of 7 there are 17 people, that lecture still can be imparted with equal ease. Instead of 7 people, if there are 17 people, the lecture still can be imparted with equal ease. इस 17 के बदले 27 लोग भी अगर हो जाएं, 27 people, will there be a problem? No. I can impart the same knowledge to all of you and it will be easier for all of you to gain that knowledge. So in that method, cost per training of the job method में सस्ता हो गया. Right?
So on the job method में अगर cost बोल रहे हो, then you need to mention if it is for a small number of people, then definitely it is cost efficient. Next, Ruchi, Tanvi. More motivation. नहीं, against your sticking to salary तुम लोग कल मुंह पटक जाता है. हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि सैलरी ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दोनों में मिलती है. इफ यू आर सिलेक्टेड मतलब तुम सिलेक्ट हो चुकी. अब ट्रेनिंग का मेथड क्या है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेथड पे कि तुम किस तरीके की नौकरी में हो. जैसे कोल इंडिया में अगर सिलेक्शन होता है, यू आर फाइनली सिलेक्टेड एंड यू हैव स्क्रीन्ड थ्रू द मेडिकल राउंड. ठीक है, यू गॉट द ऑफर लेटर, नाउ यू हैव जॉइंड. अब उनका ये मेथड है कि 6 महीना तुमको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कर, मान लो कि ये मेथड है. 6 महीना नहीं, वो 15-16 दिन के लिए रखते हैं वहां कि 15-16 दिन के लिए अगर तुमको ट्रेन कराने के लिए उन्होंने रखा, एंड देन दे हैव शिफ्टेड यू टू द रिस्पेक्टिव सब्सिडरीज फॉर योर वर्क. तो तुमको पैसा तो तब भी मिलेगा जब तुम ऑफ द जॉब में. मोटिवेशन तुमने बोला तो मुझे लगा मोटिवेशन तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि अगर तुम किसी चीज को फर्स्ट हैंड देख रही हो, फर्स्ट हैंड कर रही हो, हम तुमको लैपटॉप पे कोई काम करना सिखा रहे हैं, एमएस वर्ड, ठीक है, यू आर डूइंग, यू विल बी मोर मोटिवेटेड ना. और अगर रूम में सिर्फ तुमको बता रहे हैं कि इसमें ये की होता है, फिर वो की होता है, फिर वो की होता है, यहाँ पे डूइंग, यू आर डूइंग बाय लर्निंग, है ना. That is why more motivation. Your point is correct. Just the approach was a little different. चलो और बताओ. Adapting to new technology. Adapted? Adapting to new technology. हाँ, adapted to the new technology, but then the same thing. In off the job. Increase in innovation. Increase in innovation. No. इनोवेट कैसे होगा ट्रेनिंग में? रिसर्च तो नहीं हो रहा है, नया नहीं सिखाया जाता है, जो सिखाना होता है वही सिखाया जाता है. यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप अगर इंजीनियर हैं और आप किसी इंजीनियरिंग रोल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, देन डेफिनेटली यू विल बी टॉट टू डील विद मशीन एंड हाउ टू डील विद द एरर्स इन मशीन. अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? काउंसलर्स का मतलब होता है काउंसलिंग का मतलब होता है जब आप देखो, there is a reason why there is difference between teaching, guiding and counseling. जब हम चाइल्ड काउंसलर की बात करते हैं, बच्चों को किसी तरीके का प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत जिद्दी हैं, ठीक है, किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, देन आप ये देखेंगे कि बच्चे को अलग से बुलाया जाता है और कई बार उनके फियर, उनके होप्स, उनके इमोशंस, उनकी एंगर और उनकी इनसिक्योरिटीज, ऐसे पर्सनल इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके, एक्सप्लॉइट करने का मतलब यहाँ अलग है, एक्सप्लॉइट यानी उस पे एनालिसिस करके द काउंसलर विल कम टू द पॉइंट कि व्हाट एक्चुअली इज ट्रबलिंग द चाइल्ड. क्योंकि पेरेंट्स तो घसीटते हुए ले गए, सबका बच्चा बात मानता है, मेरा क्यों नहीं मानता है, हो सकता है काउंसलिंग की जरूरत उसको नहीं, आप ही को. अंडरस्टूड? और ऐसा बहुत होता है. You're not understanding the child, and क्योंकि वो child है, कमजोर है, बस चढ़ गए उसके ऊपर. So it's not like that. So that is why counseling is a term which we discuss when there is more personal touch with the candidate. Okay, we talk on their personal insecurities, fears, hopes, and emotions. इसको कहते हैं counseling. इसलिए कोचिंग को काउंसलिंग या टीचिंग से कंफ्यूज नहीं किया जाए. नीदर विद काउंसलिंग नॉर विद टीचिंग. कोचिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन द स्किल्स एंड नॉलेज which is required by the candidate to perform his work. That's it. And sometimes he behaves like, a person who coaches you like I'm your teacher. Sometimes आप में से कोई ऐसा होता है, लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी कभी की क्लास में क्यों नहीं समझ में आ रहा है, they come and they tell me कि my conditions at home is not good, I cannot focus in class, what to do? होता है. So sometimes a person will also play the role of counselor, but
This method coaching should not be mixed with counselors or teaching. This is merely guiding the person for the skills and knowledge that he needs to work on his workplace. Okay? The biggest advantage of coaching is that you are at your workplace, you are getting motivated for the real life thing that you are seeing, and that person will be imparting knowledge to you. Understood? It's like a normal coaching, लेकिन इसको counseling से confuse नहीं करना है. Fine. Second method that we discussed was understudy. नाम देखो, दो वर्ड से बना है, एक अंडर और एक स्टडी. कभी देखा है बहुत बड़े लॉयर के साथ छोटा वकील या इंटर्न या ऐसे छोटा लॉयर जो होता है वो साथ साथ घूमता है, उसके साथ साथ केस लड़ने के लिए जाता है और सीखता है कि इस कंडीशन में क्या अप्रोच लगाया जाता है, इस कंडीशन में क्या डिसीजन लिया जाता है. या फिर डॉक्टर्स के साथ भी देखा होगा, देखा है, छोटे डॉक्टर्स होते हैं, उनको बोलता है ये कंडीशन है, ये डायग्नोस हुआ है, ये दवा रेकमेंड करिए. सो व्हाट डू यू पिक पॉइंट, जैसे ट्रेनीज हैं उसमें से आपने एक अंडरस्टडी उठा लिया. अब मुझे अगर बोला जाएगा, मैंडेटरली बोला ही जाएगा, यू पिक पॉइंट वन अंडरस्टडी फ्रॉम दिस बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, whom would I pick? पिक करते समय मेरा क्राइटेरिया ये होगा कि जिसके साथ मेरा थॉट मैच करता है, the one who understands me, the one whom I understand, जिसके साथ similar thought of action हो, right? Only that person I'll pick up as my understudy. Understudy का मतलब is a kind of assistant. आपने उसको assistant बना लिया अपने डिपार्टमेंट का और वो आपके साथ साथ रहेगा, that person on the job training में, and that person will learn from various experiences that his senior is having at the workplace, और वो decision making skills भी सिखाई जाएगी, क्योंकि there are many, you will be subjected to various problems. See, until you have a problem, you won't grow. आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे, वो लाइफ में भी ये चीज काम होता है. प्रॉब्लम्स ही वो मोमेंट होता है जब आप या तो निकल जाते हैं वहां से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के, या वो टेस्ट होता है कि आप एक कमजोर आदमी. अंडरस्टैंड? दैट अंडरस्टैंडिंग विल बी पिक पॉइंटेड, एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारा डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, उस समय वो अपने सीनियर से सीखता है. नाउ दिस अंडरस्टडी, इसका आगे बढ़ना is dependent upon when that senior will vacate that position. यानी उसका रिटायरमेंट हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, वो रिजाइन कर दे, या उसका डेथ हो जाए. Only under these conditions, when there is a detachment from the workplace, that person will be, this understudy will be able to get promoted. ठीक है? This creates a little bit of risk. मान लो, देखो इसका दोनों चीज देखो. अगर हम किसी एक लड़के तन्नी को उठा लिए कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इससे दो चीजें होंगी. बाकी ट्रेनिंग्स में रोष होगा उसके अगेंस्ट में कि उसको ही क्यों उठाई, और दूसरी चीज उसके अंदर का डेवलप करने का और प्रमोशन के लिए फाइट करने का जो स्किल है वो मर जाएगा, बिकॉज शी विल बी कंप्लेजेंट कि अब तो हम मैम के अंडरस्टैंडिंग है, अब मैम का जो होगा होगा, तो उसके बाद तो हम ही है, तो उसके भी दिमाग में एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ गई. गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? थर्ड पॉइंट इज जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन का मतलब समझ रहे हैं आप? जॉब को रोटेट करना. See, in an organization what happens that there are jobs of many kinds, and sometimes without any specific reason some jobs are considered superior over others. Working in certain department will be considered more superior than working in some other departments. Job rotation is one of those methods where the employees are rotated from one job. You know, you're given to work in, for 1 month you're given to work in planning, the other month you'll be in operations. This way what happens ki you understand ki why certain things are done in certain way.
आप जब तक स्टूडेंट हैं आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। व्हेन यू कम टू माय पोजीशन आपको ये दिखेगा कि कितने भी अच्छे तरीके से बोल दो, देयर विल ऑलवेज बी सम स्टूडेंट्स जो बात नहीं मानेंगे, जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे इस बात को। उन बच्चों के लिए टीचर्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है क्योंकि वो पूरे क्लास का माहौल खराब कर देंगे। अंडरस्टूड? So it's only when you come to my position you will realize कि strict होना जरूरी क्यों होता है। Why do I or other teachers behave certain way? क्यों किसी चीज को एक उसी तरीके से किया जाना जरूरी है? जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं आएंगे आप नहीं समझेंगे। That is why job rotation is a method to let other employees of the organization who are not working in a particular department to understand the fact that there are certain ways which are acceptable only in certain ways, and there is no superiority. Every department works in coordination with each other, right? The other thing, one drawback of job rotation is that you need time to sort of adapt to a certain job. Okay, by the way you adapt to a certain job and you leave, by the time you just learned, you adapted, gradually you are picking up your efficiency, and that time has come when you are supposed to shift to a different department. Understood? This will create less efficiency and your psychological chaos also. एक दिन आपको यहाँ क्लास करा दें, एक दूसरे दिन बोलेंगे वहां बैठो, तीसरे दिन शायद उधर ऊपर बैठा दें क्लास में, चौथे दिन कहीं और क्लास कर, ये इससे डिस्टर्ब होंगे कि नहीं आप? अब हम बोले कि क्या क्या दिक्कत है, टीचर भी यहीं पढ़ा ही रहे हैं, आप भी पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ो, ऐसा होगा क्या? साइकोलॉजी नाम की भी चीज होती है। अंडरस्टूड? इफ आई एम इम्पार्टिंग द सेम लेक्चर टू यू एंड यू आर वर्किंग, सिर्फ आदर्श यहाँ पे बैठा है, बाकी दूसरे क्लास के बच्चे बैठे, क्या इसकी साइकोलॉजी वैसी ही होगी पढ़ने की? नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई जॉब रोटेशन का एक ड्रॉबैक ये होता है कि बाय द टाइम यू गेट सेटल्ड इन वन काइंड ऑफ जॉब, दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू शिफ्ट टू other departments. So it is always suggested that let the employees settle down and do not transfer them very quickly. Fine. Fourth is multiple management. As the name suggests, आप नाम देखेंगे आपको पता चलेगा मल्टीपल मैनेजमेंट मतलब एक से ज्यादा मैनेजमेंट रखना। मल्टीपल मैनेजमेंट 15 मिनट्स। मल्टीपल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि creating more than one management in an organization. So what happens that a permanent management board is built, sometimes junior board of directors. So what happens कि multiple junior board of directors को ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बहुत लर्नड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर जो एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर आने के लिए सिर्फ ट्रेन नहीं किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए। So these are the junior board of directors which are selected in the organization and they are given the organizational problems. They study, they analyze, they diagnose the problem and then they make recommendations upon that problem to the senior board. Now, choosing that method, आपने मुझे मेथड सजेस्ट किया, आपका मेथड में मानूं या ना मानूं ये मेरे ऊपर है, पर आपका ये काम है कि आप उसको फुल फ्लेजेड ऐसे कि आप ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, you will be suggesting me that problem, okay, the solution of that problem. और सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर कोई मेंबर खाली करता है, जैसे कि डेथ या resignation mostly, क्योंकि senior boards में बहुत politics and all that happens, so that case what happens that the junior person will be shifted to the senior board and membership of junior board is very important for a person to go to senior board. Fifth point is committee assignment. Committee assignment means an ad hoc committee is created in the organization. Ad hoc committee means just ad hoc matlab for the time being. Ad hoc committee is consisted in the organization and they are given the problems. Now,
When they are given the problems to solve, they will collect information and analyze it from various other areas. So the other areas also which need focus in the organization gets highlighted this way. आपका वो काम करते करते दूसरे काम में भी importance दिया जाता है, and that committee will suggest it to the senior. The difference between this and this is permanent, this is not permanent, temporary. Fine. Now of the job training, you want to go it today? याद रहेगा? मल्टीपल मैनेजमेंट जैसे नाम बता है, एक से ज्यादा मैनेजमेंट, ठीक है? मल्टीपल माने एक से ज्यादा, मल्टीपल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो सीनियर बोर्ड है, जो एक्चुअल मैनेजमेंट है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके नीचे एक जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। उन जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के वैसे लोगों को ही डाला जाता है जिनकी पॉसिबिलिटी है कि कल को अगर हमें जरूरत पड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वैसे लोगों में पोटेंशियल है कि हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक दिन में तो बनता नहीं है, इसीलिए जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है ताकि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को रिसर्च करके, फाइंड आउट करके, एनालाइज करके हम एक समाधान पे पहुंचे, और वो जो रिकमेंडेशंस है वो आप अपने लेवल पे जो एक्चुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको सजेस्ट कीजिए, ठीक है? कि आपका ये तरीका है, आपकी बात मानना या ना मानना दैट रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ द सीनियर बोर्ड। लेकिन इसी तरीके से जो जूनियर बोर्ड होता है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है? उसका डेवलपमेंट होता है। And in case there is any position vacant in the senior board, that person, the skilled person from the junior board is promoted. ठीक है? और सीनियर बोर्ड में रिक्रूट होने के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जूनियर बोर्ड का मेंबरशिप होना चाहिए। Got it? And this is a permanent body, unlike this, which is an ad hoc committee. We'll continue the rest in the next class.